بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک ریڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے اس پاک اور بابرکت مہینے کی، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اترا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں، اور اس لیے تم گنتی پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا کری اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ دوستو، رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے، اور روزہ رکھنے سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، اور کیا رمضان المبارک میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں، اور ماہ رمضان کے اس بابرکت اور مقدس مہینے میں شیطان کو کیوں قید کر دیا جاتا ہے، اور رحمتوں سے بھرے اس پاک مہینے میں اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں پر وہ کون سے 5 خاص کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں فرمائے، اور رمضان المبارک کی ہر رات کو کتنے ہزار لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے رہائی ملتی ہے، اور وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس مہینے میں بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون کون سے دردناک عذاب فرمائے۔ دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کی 12 اہم باتیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، اور حرمت کے اعتبار سے ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے برا ہو۔ نمبر 3، رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے قرآن مجید نازل ہوا، جس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنی مقدس کتابیں نازل ہوئیں سب اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ رحمتوں کے نازل ہونے کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کھلتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال کی توفیق بھی خوب ملتی ہے اور ان کی قبولیت بھی نہایت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ نمبر 5، رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورے مہینے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے عشرے یعنی کہ مہینے کے پہلے 10 دن حدیث کے مطابق زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ عشرہ ہی رحمتوں والا ہے۔ نمبر 6، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو جا، اور اے شر کے طلب کرنے والے
बाज आ जा। नंबर 7, इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक की पहली शब में जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसका कोई दरवाज़ा खुला नहीं रहता। नंबर 8, सरकश जिन्नात और शैतान कैद कर दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। नंबर 9, रमज़ानुल मुबारक मगफरत और बख्शिश का महीना है। एक रिवायत में है कि रमजान का महीना आने वाले रमजान के महीने तक होने वाले गुनाहों का कफारा है। नंबर 10, रमजानुल मुबारक जहन्नुम से निजात का महीना है। रमजानुल मुबारक की हर शब में अल्लाह ताला के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं। हर मुसलमान के लिए हर शब में एक दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 11, रमजानुल मुबारक में आमाल का सवाब बढ़ जाता है। इस महीने नफल का सवाब दूसरे महीने के फर्ज के बराबर होता है और फर्ज का सवाब दूसरे महीनों के 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला से डरते रहना, क्योंकि इस महीने में नेकियों के सवाब को इस कदर बढ़ा दिया जाता है जितना रमजान के अलावा किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता। इसी तरह गुनाहों के वबाल को भी इस कदर बढ़ाया जाता है जितना रमजान के अलावा किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता। नंबर 12, रमजानुल मुबारक में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। इस महीने की बरकत मोमिन के रिज्क में भी जाहिर होती है। हजरत सलमान फारसी की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है कि रमजानुल मुबारक वो अजीम महीना है कि जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसका हर कोई खुली आंखों से तजुर्बा कर सकता है कि गरीब मुफलिस शख्स को भी रमजानुल मुबारक में वो उम्दा और बेशबहा खाने मिलते हैं जिसकी कभी कभार साल भर में शक्ल देखने को नहीं मिलती। ये सब यकीनन इसी महीने की बरकतें हैं जो अल्लाह ताला हर ईमान वाले को नसीब फरमाते हैं। हजरत सैयद जबीर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को रमजानुल मुबारक में 5 चीजें ऐसी अता की गईं जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। नंबर 1, जब माह रमजान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ नजर रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह ताला की नजर रहमत हो जाए उसे कभी भी अजाब न देगा। नंबर 2, शाम के वक्त रोजादार के मुंह से जो बू आती है जो अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। नंबर 3, फरिश्ते दिन रात रोजेदार के लिए दुआए मगफरत करते रहते हैं। नंबर 4, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है कि मेरे नेक बंदों के लिए तैयार हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मशक्कत से मेरे घर और रहमत से राहत पाएंगे। और नंबर 5, जब माह रमजान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सबकी मगफरत फरमा देता है। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूदा लोगों में एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल क़द्र है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने काम से फारिग हो जाता है तो उसे मजदूरी दी जाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजें जुमा और अगले जुमे तक और रमजान से अगले रमजान तक गुनाहों का कफारा है जब तक कि गुनाह कबीरा से बचा जाए। अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है, और ईद के दिन सारे महीने के बराबर गुनहगारों की बख्शिश की जाती है। दोस्तों, एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान शरीफ के हर दिन में अल्लाह ताला 10 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त
10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है जिन पर उनके गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका हो। जुमा के दिन और रात हर घड़ी में ऐसे 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है जो अज़ाब इलाही के हकदार बन चुके थे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो अर्श अजीम के नीचे से मसीरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिला देती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज़ पैदा होती है कि इससे बेहतर आवाज़ आज तक नहीं सुनी गई। इस आवाज़ को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली खूबसूरत हूरें ज़ाहिर होती हैं, यहाँ तक कि वो जन्नत के बुलंद महलात पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि है कोई जो अल्लाह तबारक व तआला से हमको मांग ले और हमारा निकाह उससे हो जाए। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना तशरीफ़ लाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक तब्दील हो जाता है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाजों में कसरत करते हैं और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगा करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरा बंदा मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और मेरी रज़ा हासिल कर ले। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में शयातीन को कैद कर देता है ताकि शैतान मरदूद मेरे और मेरे बंदे की राह में ना आए और मेरा बंदा मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ब हासिल कर ले। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान के इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने में भी जो लोग अपनी बख्शिश ना करवा सके तो कब करवाएंगे। दोस्तों, जो लोग माह रमज़ान में भी गुनाहों से बाज नहीं आते उनके मुताल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत ज़लील व रुसवा ना होगी जब तक वो माह रमज़ान का हक अदा करती रहेगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमज़ान के हक को ज़ाया करना और उम्मत का ज़लील व रुसवा होना क्या है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान में हराम कामों का करना, और फिर फरमाया कि जिसने माह रमज़ान में ज़िना किया या शराब पी तो अगले रमज़ान तक अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह ताला के जितने फरिश्ते हैं सब उस शख्स पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगले रमज़ान से पहले मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमज़ान के महीने में डरो, क्योंकि जिस तरह इस महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती हैं इसी तरह इस महीने में गुनाहों का वबाल भी बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि रोज़ा रखने का मकसद क्या है और रोज़ा किस पर फ़र्ज है और वो कौन से लोग हैं जिनको रमज़ान में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लिहाजा दोस्तों, इसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरे बकरा में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि अगलों पर फ़र्ज किए गए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, और ये गिनती के दिन हैं। और तुम में से जो बीमार हो या सफ़र में हो तो उतने दिनों के रोज़े बाद में रखे, और जिनमें इसकी ताकत ना हो तो इसके बदले में एक मिस्कीन का खाना, और जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है अगर तुम जानो। दोस्तों, कुरान मजीद की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा रखने का मकसद बयान फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का भी जिक्र फरमाया जिनको रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र पर हो, लिहाजा इस आयत करीमा से पता यही चला कि मुसाफिर पर रोज़ा फ़र्ज नहीं जो सफ़र पर हो।
اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں۔ دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم گناہ گاروں کو رمضان المبارک میں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب گناہ گاروں کی مغفرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسی ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔